Now, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Next word I'll explain, or term I'll explain, is frame of reference. So next topic is frame of reference. Let's understand what is frame of reference. See, uh, see objects around you. Hmm? See or look at objects around you. There might be a table somewhere nearby. शायद आपके रूम में एक टेबल रखा होगा. इनफैक्ट आई एम श्योर एक टेबल रखा होगा. तो सपोज दिस इज अ टेबल प्लेस्ड नियरबाय इन योर रूम. ये रूम है आपका, इस रूम में एक टेबल रखी हुई है, राइट? सो माय क्वेश्चन इज whether that object table is in motion or at rest. The question is whether table around you. Question is whether table is or at rest, right? So question is the table around you is in motion or at rest. So naturally everybody will answer that table is at rest, right? So everybody says table is at rest. Question is whether it is correct or not. The answer to this is almost everybody answers table is at rest, right? So answer is what? Table is at rest. Now again, if I ask you to observe this table, again observe the table from space. स्पेस में जाके वो टेबल ऑब्जर्व करो. तो स्पेस में अगर आप जाते हो, टेबल ऑब्जर्व करते हो, व्हाट यू विल नोटिस इज maybe this is sun, and वो टेबल कुछ ऐसा चलता हुआ नजर आएगा आपको ऐसे. So table moves around sun in a different type of path. कुछ अजीब सा एक पाथ होगा जिसमें वो टेबल मूव करता हुआ नजर आएगा, राइट? कुछ ऐसा पाथ होगा. एक्चुअली दिस टेबल इज एन अर्थ, और ये टेबल अर्थ घूम भी रहा है तो उसके साथ टेबल ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, राइट? तो नाउ क्वेश्चन इज वेदर टेबल इज एट रेस्ट और टेबल इज इन मोशन. तो आंसर दिस टाइम इज टेबल इज मूविंग अराउंड सन. So this time answer is table this time is in motion and it is moving around sun, and is moving around sun, right? Now, so what is correct answer? Is it at rest or is it in motion? Earlier we said it is at rest. If I see this answer, table is at rest. Here I said table is in motion. So what exactly this table is doing? It is at rest or it is in motion? The answer to this is it depends on frame of reference. Frame of reference. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका आंसर देगा. वो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स with respect to which we study the motion of any object is known as frame of reference. So frame of reference is what? Frame of reference is set of the objects
with respect to which we study motion of any object. For example, we were studying motion of the table. We were studying motion on this table. In first case, when you said that object is at rest, why you said so? Because in first case, you have taken, in first case, you have taken maybe floor of the room, ceiling of the room, walls of the room as frame of reference. ये सब चीजों को आपने frame of reference बनाया था, right? And table is not moving with respect to these objects, right? ये objects के reference में ये table नहीं move कर रहा था with respect to frame of reference. तो इसलिए आपने बोला hence table is said to be at rest. Whereas in case 2, second case में क्या होता है? आपने frame of reference किसको बनाया? Maybe stars, moon, sun, where forms frame of reference, right? तो आपने सन, मून, आजू बाजू में जो आप मतलब दूर में आपके जो स्टार्स नजर आ रहे हैं, you have chosen those objects as frame of reference, right? And इस बार टेबल की पोजीशन आपको चेंज होती दिख रही थी, right? And position of table changes with respect to stars, moon, etc. Hence, table is said to be in motion. Table is said to be in motion in this frame of reference. In this frame of reference. इस frame of reference में वो object क्या था? टेबल आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, right? तो एक और कंक्लूजन लिखूंगा यहाँ पे कि motion of any object, बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, is relative statement. That is object moves with respect to some frame, whereas it may be at rest with respect to other frame. Okay. किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है. तो ये रिलेटिव वर्ड है, इट्स नॉट ऑब्सोल्यूट. हर एक ऑब्जेक्ट चल भी रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट रुका भी है. अगर मैं बोलूं आपको सन, तो आपको लगता है सन रुका हुआ है, बट सन चल भी रहा है. कैसे? वी हैव हर्ड गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट. तो गैलेक्सीज तो एक दूसरे से दूर जा ही रही हैं,
Now, as galaxies are moving apart, sun is part of one of the galaxies. तो सन भी तो उनके साथ मूव हो ही रहा है। तो कोई भी चीज रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो फ्रेम किन किन चीजों के रिस्पेक्ट में आप उसका मोशन स्टडी कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्लियर है? So motion of any object is relative statement, that is object moves with respect to some frame whereas it may be at rest with respect to other frame. कहीं पे वो आपको किसी को चलता हुआ नजर आएगा, किसी को वो रुका हुआ। एक सिंपल एग्जांपल से बोलता हूं मैं, सपोज यू आर सिटिंग इन अ बस, ये एक बस है, राइट, एंड यू आर सिटिंग इन अ बस, ओके, एंड बस इटसेल्फ इज मूविंग एंड there's a box kept in the bus, and there's a person A and there's a person B. So A is sitting inside the bus whereas some person B is standing outside. A जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ और B जो है B बस के बाहर है। अब बस खुद मूव कर रही है, बस itself is moving with some speed, right? बस जा रही है। तो ऑब्जेक्ट O या ये जो बॉक्स है, let's name it as O, जो ऑब्जेक्ट O है is at rest with respect to bus or is at rest for object for person A, whereas O is moving, suppose यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक पोल है, समझो सपोज जैसे इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ पे कुछ बल्ब लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल। तो O is moving with respect to, ये जो ऑब्जेक्ट O है वो बस के साथ जा रहा है, तो O क्या हो गया, is moving with respect to ground, tree, then your pole, electric pole, etc., or is moving for B. ये ऑब्जेक्ट B से तो दूर जाता हुआ नजर आ ही रहा है ना। So what I see is that object O, इसको मैंने O से मार्क किया है, ऑब्जेक्ट O is moving away from B. तो B के लिए ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि A is also sitting or standing inside the bus. A is also, person A is also sitting or standing inside bus. तो उसके साथ ही ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो O की पोजीशन देखो, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इससे तो दूर नहीं हो रही है, तो ऐसे दोनों साथ में जा रहे हैं, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो जो पर्सन A जो खुद बस के अंदर है, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, whereas for a person who is standing outside, जो बाहर रुका हुआ है, जो बाहर खड़ा है, बस के बाहर है, उसके लिए that object is in motion, right? So conclusion क्या है? Motion is a relative word. Motion किसी का absolute नहीं होता, किसी के respect में वो चल रहा होगा, किसी दूसरे के respect में वो रुका हुआ होगा। Clear है? Okay. So for some objects, the in a particular frame of reference, the object may be at rest, and in other frame of reference, the object may be in motion. किसी frame में वो चल रहा होगा, किसी frame में वो रुका हुआ होगा. So motion is a relative word, not absolute word. Clear है? So ये हो गया आपका frame of reference. Now let's come to motion. अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर. अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया मोशन इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन. मोशन इन वन डायमेंशन. सो मोशन इन वन डायमेंशन एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रहा है. ये एक पाथ है जिसपे एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बाइक है, कुछ भी ले लो अभी फिलहाल के लिए. तो देयर इज एन ऑब्जेक्ट और देयर इज अ पर्सन. सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. तो आप
कैसे बोल पाओगे कि इज वॉकिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इज नॉट एट रेस्ट? आपको उसके मूवमेंट या मोशन का पता कैसे चलता है? तो स्टेटमेंट क्या निकलता है, जैसे समझो यहाँ पे एक पिलर है जिस पे कुछ लाइट लगी हुई है, राइट? तो मुझे क्या दिखता है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मेरे लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये समझो इलेक्ट्रिक पोल है, या समझो आपका एक, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा था, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब बदलता है तो मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट? सो इज एन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन, ये जो आदमी है, पोजीशन ऑफ पर्सन changes with respect to frame of reference, we say person is motion, या object is in motion, person object जो भी लेना आप ले लो फिलहाल के लिए। तो जब भी उस आदमी की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है, कहाँ पे? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया हुआ मैंने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया मैंने ग्राउंड को, ट्रीज हैं, आजू बाजू में कुछ इलेक्ट्रिक पोल लगे होंगे या कुछ चीजें होंगी, तो वो सारी चीजों को मैंने क्या लिया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इस ट्री से ये दूर जा रहा है या इलेक्ट्रिक पोल से वो दूर जा रहा है, तो आई विल से इट इज इन मोशन, या उसकी तरफ आ रहा तो आई विल से इट इज इन मोशन। बट अगर उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो वो जहां पे है वहीं रुका हुआ है, then I'll say it is rest, right? So when position of person changes with respect to frame of reference, we say person is in motion, right? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है पोजीशन। तो पोजीशन वर्ड से हम वापस से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन, तो पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ object in motion is at this point where object is located at any instant, या ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बोल देता हूं। तो पोजीशन पहले मैं क्या बोल रहा हूं? पोजीशन किसको बोलते हैं? पोजीशन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने घड़ी देखी एट 11 से 12:06, ये ऑब्जेक्ट मुझे, ये आदमी मुझे यहाँ दिखाई दिया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये उसकी लोकेशन है, ये उसकी पोजीशन कहलाती है, राइट? तो पोजीशन किसको बोलते हैं? पोजीशन इज the point where the object is located at particular instant. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वही उसकी पोजीशन है, राइट? ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे यहाँ पे। पोजीशन, पोजीशन आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? हाउ यू विल एक्सप्रेस द पोजीशन, और हाउ विल यू लोकेट द पोजीशन? So to locate the position, once again, what we are going to use to locate the position or describe the position, we will use coordinates of the point. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करूंगा मैं। ये स्ट्रेट रोड होगा, इस रोड पे कहीं पे मैं फिक्स पॉइंट लूंगा, इसको मैं देखूंगा यहाँ से कितना डिस्टेंस है, मे बी 2 यूनिट्स, तो ऐसे उसकी पोजीशन है x इक्वल्स टू 2। तो पोजीशन लोकेट कैसे की जाती है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी यूज इट्स कोऑर्डिनेट्स, राइट?
वो कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे हम लोग पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अगली चीज, पोजीशन विल बी डिस्क्राइब्ड फॉर इंस्टेंट और इंटरवल। आप हर इंस्टेंट में पोजीशन बताओगे या एक इंटरवल में पोजीशन बताओगे? तो पोजीशन को डिस्क्राइब कैसे करोगे, इंस्टेंट में या इंटरवल में? तो आंसर इज इंस्टेंट। पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड एट वेरियस इंस्टेंट्स, राइट? तो पोजीशन जो वर्ड है, पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड फॉर एन इंस्टेंट। So position is described for an instant। जो भी आप पोजीशन बताओगे हर इंस्टेंट बताओगे। आप बताओगे 12:06 पे पोजीशन ये है, आप बताओगे 12:07 पे पोजीशन ये है, तो हर इंस्टेंट पोजीशन बताई जाती है। पोजीशन एक इंटरवल में नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 12 से 1 बजे के बीच में मेरी पोजीशन ये है, मैं ये बताऊंगा 12 बजे एग्जैक्टली मेरी पोजीशन ये है, 12:01 पे मेरी पोजीशन ये है, 12:05 पे मेरी पोजीशन ये है, 12:10 पे पोजीशन ये है। तो आई विल डिस्क्राइब माय पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट, नॉट इन अ इंटरवल, राइट? तो जैसे मैंने बोला था पहले ही, कुछ क्वांटिटीज इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती हैं और कुछ क्वांटिटीज इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। तो पोजीशन हमेशा इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती है। हर इंस्टेंट पोजीशन आपकी अलग होती है, चेंज होती है, सेम भी हो सकती है अगर रेस्ट पर, बट डिस्क्राइब हम लोग हर एक इंस्टेंट के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसा, जैसे आप सपोज ये स्ट्रेट रोड पे हो, ठीक है, ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5, इधर दिया -1 -2 -3 -4 एंड सो, राइट? ये दिया हुआ। जब मैंने घड़ी देखना स्टार्ट किया, मतलब उसको मैं 0 सेकेंड्स बोलता हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि एक पार्टिकल है वो यहाँ था और इस साइड जा रहा था। 1 सेकेंड के बाद मैंने नोटिस किया वो यहाँ पहुंच गया, 1 सेकेंड के बाद यहाँ गया और रुक गया, फिर रिटर्न आया। मैंने देखा बड़ी तेजी से, 3 सेकेंड पे जब घड़ी देखी मैंने, 3 सेकेंड पे यहाँ पहुंचा था, 4 पे यहाँ पहुंचा था, 5 पे यहाँ पे जाके रुक गया, राइट? तो अलग अलग टाइम पे मैंने नोटिस किया उस पार्टिकल की पोजीशन ऐसी दी हुई है, राइट? सो मैं डिस्क्राइब कैसे करूंगा? कोई मुझसे पूछेगा पार्टिकल की पोजीशन एक्सप्लेन करना है, तो हाउ विल आई डिस्क्राइब? एक टेबल जैसा बना के देता हूं मैं, यहाँ पे मेंशन करता है, यहाँ पे लिखा है मैंने टाइम, ये टाइम कौन सा है? इंस्टेंट है, एंड यहाँ पे लिखी है मैंने पोजीशन, ये पोजीशन है। कोई मुझसे कहेगा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे आपकी पोजीशन बतानी है आपको। तो t इक्वल्स टू 0 पे आपकी पोजीशन क्या दिख रही है आपको? कहीं दिख रही है? 0 सेकेंड पे आपकी पोजीशन है x इक्वल्स टू 2, 1 सेकेंड पे आपकी पोजीशन क्या है? 4, 2 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन क्या है? 5, 3 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन क्या है? 3, 4 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन क्या है? -1, 5 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन क्या है? समझो -4, तो -4। तो ये है आपकी पोजीशन। तो ऐसे हम पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे। पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पोजीशन अलग होती है और ऐसे हम पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं, राइट? सो आई स्टॉप हियर। इसको अच्छे से रीड करो, कुछ चीजें इनमें से टेक्स्ट बुक में दी हैं, कुछ नहीं दी हैं। आई होप आपने कॉपी किया होगा, तो इनको अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो, विल डिस्कस फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।